3 months ضرور ڈاکٹر کو وزٹ بھی کرنا ہے اور ٹیسٹ بھی کرا لیں تو بہت اچھی بات ہے. بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. یس دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو آج کل ہم سنتے ہیں ملکی سیاست میں سائبر سیکیورٹی کے بڑے چرچے ہیں. سائبر کرائم تو پہلے بھی ہو رہے تھے, اس کے لیے قوانین موجود ہے, بہت سے طریقے موجود ہیں پریونشن کے بھی, لیکن آج کل سائبر سیکیورٹی کے چرچے اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ کچھ ہمارے سامنے ایسی آڈیوز یا کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ جن کا تعلق ڈائریکٹلی سائبر سیکیورٹی سے ہے. اب وہ ڈیٹا جو ہمارے کسی بھی سسٹم میں محفوظ ہوتا ہے وہ غیر محفوظ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایون یہ جو ہم موبائل ڈیوائس لے کے پھرتے ہیں شیب, یہ بہت ہمارے جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اس کا فرنٹ کیمرہ, اس کا مائک کبھی بھی کہیں بھی ایکسیس ہو سکتا ہے اور آپ کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہمارے سسٹمز ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے اندر ہمارا بہت سا, اس لیپ ٹاپ کے اندر بہت سا ایسا ڈیٹا ہوگا جو کہ کانفیڈینشیل ہوگا, لیکن ہیکرز اس کو بڑی ایزیلی ہیک کر کے وہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر, ایون ہمارے فون کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے فون میں, ہمارے لیپ ٹاپ میں, ہمارے دوسرے ڈیسک ٹاپ سسٹم میں کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو بہت آسان ہے ایکسیس کرنا. اور آپ کی شکل میں کسی دوسرے سے چیٹ کرنا, کسی دوسرے سے بات کرنا, اس کو کوئی ای میل کرنا, یہ بڑا آسان ہو گیا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے اور ہم اس سے بچیں کیسے؟ اس پر بات کریں گے, ملاقات کریں گے ایک ٹیلنٹڈ نوجوان کہہ دوں یا بچہ کہہ دوں, بکاز بڑی چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بہت اچھا وہ کام کر رہا ہے. سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بن چکے ہیں, ایک فرم کے فاؤنڈر بھی ہیں. ہم بات کریں سید محمد عدنان کی, عمر ہے صرف اور صرف 15 سال, لیکن بہت اچھے لیول پر ماشاءاللہ وہ پہنچ چکے ہیں. 8 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ انہوں نے سیکھی. تو یہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کیسے بنے, سفر کیسا رہا, کہاں سیکھا, اس پر کریں گے بات. ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک. اتنی ینگ ایج میں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ, سفر کیسے شروع ہوا, سیکھا کہاں سے؟ سیکھا بیسیکلی جو مین ٹریننگ تھی, انیشیل ٹریننگ, وہ میں نے کہتے ڈفرینٹ کورسز, جیسے کہ آپ کے پاس آن لائن خان اکیڈمی ہے, یوڈیمی ہے, کورسیرا ہے, ادھر سے میں نے ڈفرینٹ آن لائن کورسز کیے. پھر یوٹیوب کے اوپر آپ کے پاس ڈفرینٹ چینل ہیں جیسے سائبر مینٹور کے نام سے. اس کے بعد پھر ڈفرینٹ آرٹیکلز اینڈ بلاگ پوسٹ پڑھے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے مطلب گریجولی جیسے جیسے میری نالج انکریز کرتی گئی, پھر لیول آف ٹریننگ بھی کہتے اسی حساب سے انکریز کرتا گیا. پھر اس کے بعد جو ریسرچ پیپرز سے کہتے مطلب نالج گین کری. اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے اپنی جو کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ اور انوویشن کی ایبلٹی ہونی چاہیے. سو بیسیکلی اس پہ میں نے کافی زیادہ ایکسرسائز کیا, تو ایسے کر کے پھر جو ہے سائبر سیکیورٹی. اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک سسٹم کی سیکیورٹی کو یقینی کیسے بناتے, کیسے انشور کرتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ہے اس کا ڈیٹا کوئی ہیک نہیں کر سکتا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک سسٹم ہے آپ کے پاس, اب اس کی سیکیورٹی آپ کو سب سے پہلے خود ٹیسٹ کرنی ہے. آپ اس سسٹم کو خود ہی ہیکر بن کے آپ اس کو ہیک کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں تو ہیکر بننا نہیں آتا نا, کیسے کریں گے؟ اس لیے جو ہے کمپنیز جو ہے وہ کنسلٹنگ فرمز کو ہائر کرتی ہیں, یا پینیٹریشن ٹیسٹرز جن کو ہم کہتے ہیں ان کو ہائر کرتی ہیں. وہ ان کے سسٹمز کو بریچ کرتے ہیں لیگلی, اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پہلے سے ہی جو سافٹ ویئر میں یا اپلیکیشن میں جو لوپ ہولز ہوتے ہیں, جو ولنریبلٹی ہوتی ہیں, جو خامیاں ہوتی ہیں, وہ پہلے سے ہی پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ ہم ان کو سیکیور کر کے پھر جب اس کو فلی لانچ کرتے ہیں اپلیکیشن کو, تو پھر وہ آلریڈی سیکیور ہوتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے. اچھا عدن, ایک بات اور بتائیں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک نیشنل سائبر سیکیورٹی کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اینڈ یو وان دیٹ. کیا مقابلہ تھا, کب ہوا, کیسے جیتے؟ یہ مقابلہ جولائی میں ہوا تھا. نیشنل سینٹر آف سائبر سیکیورٹی نے کروایا تھا, پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج کے نام سے. یہ اوریجنلی جو تھا یہ یونیورسٹی گریجویٹس اینڈ پروفیشنلز کے لیے ایم کیا گیا تھا. یعنی اس میں جو لوگ آئے تھے وہ پی ایچ ڈیز بھی تھے. ایگزیکٹلی. اور آپ اتنے چھوٹے سے ننے مننے سے پی ایچ ڈی ہیں, آپ تو ویسے ہی سمجھے اعزازی ڈگری. یعنی وہ پی ایچ ڈیز والوں کو بھی, ان پروفیشنلز کو بھی 15 سال کے عدن نے ہرا دیا. کتنے کنٹیسٹنٹس تھے؟ اراؤنڈ جو جس کیٹیگری میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں 30 ٹیمز تھیں. 30 ٹیمز تھیں. آپ کی بھی ٹیم تھی یا آپ اکیلے کافی ہیں؟ میں اکیلا تھا. میرے ایک تو یہ کہ پی ایچ ڈیز کو, پروفیشنلز کو, بلکہ ٹیمز کو بھی آپ نے ہرایا. اچھا, کیٹیگری سے کیا مراد ہے, کتنی کیٹیگریز تھیں؟ There were 3 competitions. ایک تھا آئیڈیاز اسٹارٹ اپ کپ چیلنج, ایک تھا کیپچر دی فلیگ ایونٹ, اور ایک تھا پاک کرپٹ چیلنج. آپ کس کیٹیگری میں تھے؟ میں آئیڈیاز اسٹارٹ اپ کپ چیلنج میں. اس میں بیسیکلی جو تھا آپ کو کوئی سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ انوویٹیو آئیڈیا لے کے آنا تھا. تو آپ کا کیا آئیڈیا تھا؟ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ہماری جتنی بھی ڈیٹا کہتے اسٹور ہوتا ہے یا جتنی بھی ڈیٹا کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ کرپٹوگرافک الگورتھمس کے تھرو سیکیور ہوتی ہے. سو بیسیکلی اب جیسے جیسے نیو ٹیکنالوجیز کمپیوٹر سائنس میں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں, یہ کرپٹوگرافک الگورتھمس جو ہیں ہمارے ویک ہوتے جا رہے ہیں جو پریزنٹ ہیں. اسی میں سے ایک ٹیکنالوجی ہے کوانٹم کمپیوٹنگ. سو بیسیکلی ہم نے جو آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوانٹم پروف کرپٹوگرافک الگورتھمس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کریں.
या आपके लिए इंस्पिरेशन क्या थी दिन, आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? मुझे जो था, मैं शुरू से ही कंप्यूटर साइंस की वर्किंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर शुरू से, मतलब बचपन से पैदा होते बचपन नहीं मतलब बचपन से ही, मतलब ये था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है बेसिकली, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली एट द बैक एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक पावर है, और उसके बाद फिर एक साइड पे वो पूरे आपका हर इतना डेटा स्टोर हुआ हुआ, उसको कैलकुलेट, प्रोसेस सब कुछ कर रहा है, तो ये बीच में प्रोसेस क्या हो रहा है, तो मुझे ये प्रोसेस के बारे में स्टडी करने का बहुत शौक था। तो इसी स्टडी करते करते जब मैं 8 साल का था तो फिर मैंने प्रोग्रामिंग शुरू करी। उसके बाद फिर मैं जब 9 साल का हुआ तो फिर मतलब साइबर सिक्योरिटी के थोड़ा बहुत इनिशियल अट्रैक्शन जो थी मूवीज़ और मीडिया के से आई, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में स्टडी किया। फिर बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है कि आपको रोज़ बरोज़ में न्यू चैलेंजेस आते हैं, हर रोज़ जो है हमारे पास न्यू अटैक्स डेवलप हो रहे हैं, और फिर उन्हीं अटैक्स को काउंटर करने के लिए आपको न्यू डिफेंसेस भी कहते रेडी करनी है। ओके, सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और डेवलपिंग फील्ड थी, इसलिए मुझे इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन। देन आपने जहाँ जहाँ पे काम किया, सीखा, अपने जो आपकी करियर की लाइन है उसमें अपने जैसे अपनी एज के लोग भी मिले या सब आपसे बड़े होते हैं? यूजुअली जो थे सब मुझसे बड़े ही होते थे। अच्छा अदन, वैसे रूटीन क्या होती है? आपने ओ लेवल्स तो किया, उसमें माशाल्लाह 5A स्टार, A+ और 3As माशाल्लाह। तो ओ लेवल के साथ साथ ज़ाहिर आप ये करते हैं, उसमें देख रहा था कि आपने बहुत से कोर्सेज भी किए हैं, तो ये कोर्सेज कहाँ कहाँ से किए, और ये ओ लेवल स्कूल के साथ साथ अपने टाइम मैनेज कैसे किया? आप NIC जाते रहे हैं। या सो बेसिकली ये होता है कि मैं बस कॉलेज, सुबह उठ के कॉलेज और फिर कॉलेज से डायरेक्ट NIC, ओके, फिर NIC से जो है वापसी आके अपने फिर अपनी पर्सनल जो एजुकेशन है उस पर। NIC में आप कितना वक्त गुजारते हैं और वहाँ पे कितना आपको सपोर्ट मिलती है? किस तरह से आप अपनी साइबर सिक्योरिटी की इस फील्ड में आगे जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ NIC के साथ बेसिकली हमारा क्या प्रोजेक्ट है। बेसिकली मैं NIC जो है अराउंड 5 आवर्स में NIC में होता हूँ। NIC के साथ बेसिकली हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद के साथ हमने कोलैबोरेशन में एक कम्युनिटी स्टार्ट करी है जिसका नाम है साइबर पार्क। ओके, साइबर पार्क, साइबर पार्क, पार्क, ओके। एंड व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? Cyber Park is basically a community where we are gathering Pakistani cyber security professionals। फिर हम इनकी एक्सपर्टीज़ और इनके स्किल्स यूज़ करके जो है हम डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसका एक एम ये भी है कि हम जो है पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करें और मतलब पाकिस्तान को जो है एक साइबर पावर बनाएं, और इसके अलावा हम पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाहते हैं। आपने कोई प्रपोजल पुट अप किया है अदन गवर्नमेंट के लिए कि जहाँ पे आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो आप सर्व करें गवर्नमेंट के लिए नेशनल लेवल पे? राइट नाउ वी रिसेंटली मेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड यस, आप कल परसों मिले हैं? या परसों। जी जी। So basically they are also happy to collaborate with us। क्या डिस्कशन हुई है? मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, अमीनुल हक साहब से, क्या डिस्कशन हुई? Basically we are having a launch event, so basically we wanted to invite him to that event and basically हमने उनको कम्युनिटी के ऊपर भी ब्रीफिंग करी कि कैसे हमारी कम्युनिटी वर्क करेगी। So basically he liked the idea and thought that it should be put in practice to make the cyber security of Pakistan more stronger। और जो कोर्सेज आपने किए, एक तो ये कि कब कोर्सेज किए, कहाँ से कोर्सेज? बिकॉज स्कूल के साथ तो भाई हमें मौका या टाइम नहीं मिलता था, हम तो खेल कूद में मसरूफ रहते थे। इसने टाइम मैनेज किया है, कैसे किया है? बेसिकली मेरा ये होता था कि मैं अक्सर जो था खेलने नहीं जाता था, तो उस वजह से जो था मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया। या सो बेसिकली उसके वजह से कहाँ अच्छा कोर्स बड़े मुश्किल है ना? कोर्स में उदैमी, कोर्सेरा एंड खान अकेडमी, कौन कौन से कोर्सेज किए हैं फिर आपने यहाँ से? मैंने इसके ऊपर से डिफरेंट एथिकल हैकिंग के ऊपर कोर्सेज किए, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोर्सेज। और आपने किस एज पे किए ये? मैंने तकरीबन जो था मैंने 9 to 11 जो था बेसिक मैंने एथिकल हैकिंग के ऊपर कहते कोर्सेज किए। फिर उसके बाद अराउंड 11 के बाद से मैंने जो था नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर कोर्सेज करना शुरू करे। फिर अराउंड 13 के करीब मैंने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के ऊपर कोर्सेज। अच्छा, ये एथिकल के साथ अनएथिकल हैकिंग भी होती है? ऑब्वियसली। क्या होती है एथिकल हैकिंग? क्या होती है एथिकल हैकिंग? बेसिकली एथिकल हैकिंग वो है जो आपके एक लीगल वर्जन है, जिसके अंदर फर्म्स खुद अलाउ करती हैं कि आप हमारा सिस्टम ब्रीच करें ताकि हमें अपने सिस्टम की खामियां पता चल सके और हम उनको सिक्योर कर सकें। तो ये करने के लिए आपने किस सिस्टम को, किस कंपनी के सिस्टम को हैक किया और बताया कि मैंने हैक कर लिया, बस ठीक करो इसको? इसके अंदर बेसिकली आपके पास डिफरेंट बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, गूगल की तरफ से प्रोग्राम्स हैं, फेसबुक की तरफ से प्रोग्राम्स हैं, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से प्रोग्राम है कि आप उनके प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी को टेस्ट करें और फिर उसके हिसाब से वो आपको रिवॉर्ड भी करती है, फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग भी करती हैं, और उसके अलावा अपने हॉल ऑफ फेम में आप करना। आप वैसे रूटीन में इतनी मुश्किल बातें करते हैं हैं? मतलब अपनी उम्र के दोस्त आपको ना थोड़े से बेवकूफ लगते होंगे कि यार इनको पता ही कुछ नहीं है। ऐसा होता है थोड़ा बहुत।
क्या करना चाहते हो? हम भी बेवकूफ लग रहे हैं शेफ, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब मैं ही सोच रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। इस उम्र में ये बहुत बड़ी बात है, बड़े ऑनर की बात है। एंड ऑनर फॉर पाकिस्तान एज वेल ऑफ कोर्स कि आप देखिए हमारे बच्चे किस कदर आगे जा रहे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, स्मार्ट भी हैं, इनोवेटिव भी हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अदन, अब ये तो कोर्सेज है जिनका आपने हवाला भी दिया और उस पर आप ज़रा काम करते चले जा रहे हैं, बट करना क्या चाहते हैं आगे चलकर? बेसिकली मैं पाकिस्तान को अपनी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान एज अ नेशन साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करे, हम साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की टॉप रैंकिंग में। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं अभी? इस वक्त हम करंटली 79th नंबर पे हैं, लास्ट टाइम आई चेक्ड। कौन सा मुल्क टॉप पे है? टॉप पे आई गेस यूएस। ओके, तो आप स्टडी करते हैं उसके उस सिस्टम को कि अच्छा वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी साइबर सिक्योरिटी पे इतनी ज़्यादा ग्रिप कैसे? ऑब्वियसली। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंट का फ़र्क है। बिकॉज लाइक अभी भी जो हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम टू टिल नाउ, most of the encryption algorithms we are using are made in US. Okay, तो इसका मतलब है कि ऐसे algorithms हों जो हम खुद बनाएं फिर? Yeah, obviously we need to work on the research and development. और आप हमें बना के देंगे ना? पाकिस्तान को, of course, जबरदस्त। तो अब ये तो हो गया जी, आप साइबर सिक्योरिटी के मामलात में जिस आपने कोर्सेज भी किए, कंपटीशन भी विन किए, लेकिन ज़रा एक आपकी ट्रेडिशनल स्टडी भी चल रही है ना, तो आप ओ लेवल्स, एक ए लेवल्स, तो उसमें किस तरफ बढ़ना चाहते हैं? IT की तरफ ही? या मैं IT एंड मैथमेटिक्स। IT एंड मैथमेटिक्स। या बाकी बहन भाई भी इसी तरह के शौक रखते हैं या खेलने कूदने जाते हैं? जी नहीं, मेरी बहन भी कहते जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग की तरफ है। उसके अलावा मेरा भाई भी जो है, मतलब उसको भी आप बड़े हैं बहन भाइयों में? जी। और छोटे जो हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं? पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट। नहीं, बट वो उनका अपना भी IT की तरफ इतना ही इनपुट है? बेसिकली दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, बट लेकिन सपोर्ट उनकी बहुत है। अभी देखें, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेटअप ना। अब वैसे क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे फादर जो है बैंक में। ओके, बैंकर हैं, लेकिन बेटा बिल्कुल दूसरी साइड पे जा रहा है, और मदर जो है वो भाई उनके ऑफिस में सारे सिस्टम्स को सिक्योर बना के देते होंगे ना। हाँ, ये बात है। लेकिन ये देखिए कि हम जनरली क्या देखते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इस तरह कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं। वकील का बेटा वकील, हाँ, एंकर का बेटा एंकर नहीं। हाँ, वो नहीं होता। नहीं, हो भी जाता है। तो इसमें आप ये देखें कि फादर बैंकर हैं, बट वो उसका अपना एक इंटरेस्ट है, वो डेवलप हुआ, उसने उसको परस्यू भी किया, और फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल रहा है कि हम ये नहीं देख रहे कि नहीं तुम क्या, बस अभी ना करो, ये बड़ों का काम है, तुम क्यों कर रहे हो। बट अदन इज वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह, और मुझे देख के खुशी हुई। और नॉर्मली क्या होता है, कोई बच्चा हमारे सेट पे बैठा होता है ना, हम बात करते हैं तो वो मतलब उसके जेस्चर्स नॉर्मल होते हैं, अदन के जेस्चर्स बड़े संजीदा से हैं, कॉन्फिडेंट है। अब यस, अब किड शुड बी कॉन्फिडेंट लाइक हिम। और यस, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे अदन, आप इसी कामयाबियां समेटें, और जब जब आपको कामयाबी मिलेगी तो जाहिर है पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम और ऊपर जाएगा, और हम इसी तरह फख्र से कहते रहेंगे कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के बच्चे हैं, और इसी तरह से हमारा नाम रोशन करते हैं। और ये इसमें देखिए, मैं जरूर एक इदारे का नाम लूंगा, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का, क्योंकि दैट इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से या जिसकी सपोर्ट की वजह से देखें अदन यहाँ पर, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी नजर में आते हैं, बिकॉज कल हम वहाँ पर गए, बहुत सी और कहानी वहाँ पर नजर आती है। तो मैं सबसे ज़रूर कहता हूँ कि प्लीज़ डू विजिट NIC, वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, यानी गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से, गवर्नमेंट की सपोर्ट से, ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हमारे यूथ के लिए कि आप अगर करना चाहते हैं ना कुछ, यू हैव द आइडिया, वी हैव द स्पेस, वी हैव मेंटोर्स जो कि आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बढ़ेगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।